السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جشن بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضراتوں نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضراتوں سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلیفت کا دعویٰ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت آدیش تھا۔ ان وجوہوں کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ بھی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا اچھا ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ سب سے اچھا ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نہ اہل تھا اور نہ اس کا تکر بھی خلیفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا، اسی لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی العلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے احوال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہے، سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق ہے، اور آپ کے سوا ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے۔ آپ کی مدد کے لیے ہم نے یہاں ہزاروں کو لشکر تیار رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ میں خطوں کے ان کے جذبات، عقیدت اور محبت، جان اور مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجا کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا جاد اور بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام سے ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بجاد خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے۔ اگر حالات سازگار ہو تو میں بھی آؤں گا، اور اگر حالات مناسب نہ ہو تو میں واپس تشریف لائیے۔ صدر الفالج حضرت علامہ سید نعیم الدین مرادآبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں میں بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر یزید جب بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت اور سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی۔
और उसी सबब के लिए उसकी बैत नारवा थी और वह इस तरह तरह की तब्दीलों और हीलों से चाहता था कि लोग उसकी बैत कर ले। उन हालात में कूफियों का वापस मिल्लत यजीद की बैत से दस्तकशी करना और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तालिब बैत होना इमाम पर लाजिम करता था कि उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाए। जब एक कौम जालिम और कासिफ की बैत पर राजी न हो और सब साहिब इस्तहक अहल से दरख्वास्त बैत करे, उस पर अगर वह उनकी इस्तियाद कबूल न करे तो उसके ये मानी होते हैं कि वह उस कौम को जबीर के ही हवाले करना चाहता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर उस कूफियों की दरख्वास्त को ना कबूल फरमाते तो बरगाह इलाही अज़्वजल के कूफियों में इस मुस्तिबा को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास क्या जवाब होता कि हम हर चंद दरपे हुए मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैत के लिए राजी न हुए, इसीलिए हमें यजीद के जुल्म को तशद्दुद से मजबूर होकर उसकी बैत करनी पड़ी। अगर इमाम हुसैन इससे पहले आप सभी भाइयों बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपके लिए तरह तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। वीडियो अधूरा मत छोड़िएगा, वीडियो बहुत अहम होने वाला है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस राय के मुताबिक नहीं थे और इन्हें कूफियों में अहदों के मुवाफिक को एतबार नहीं था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और शहादत, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शोहरत उन सब के दिलों में इख्तिलाज पैदा कर रही थी। गोया कि यह यकीन करने की भी कोई वजह नहीं थी कि शहादत का यही वक्त है और उसे सफ़र में इस मरहला दे पेश होगा और लहजा अंदेशा माने था। बहरहाल सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले कूफा की बेपनाह मोहब्बत और अकीदत को देखकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में खत लिखकर भेजा कि हजारों अफराद ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है और यहाँ के सब लोग आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस इत्तला के बाद कूफा जाने का अज़म समीम कर लिया और उधर कूफा में जो फसाद बर्पा हो चुका था उसकी आपको इत्तला नहीं हुई थी। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 जिल्द 60 हिजरी को अपने अहले बैत खादिमों आदि को कुल 82 अफराद को हमराह लेकर राह इराक इख्तियार फरमाया। रास्ते में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफियों की बदउहदी और हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिल गई थी और इस पर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के रकफा की आराएं मुख्तलिफ हुई और एक बार आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी वापसी की मदद कसद फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यह तय पाया कि सफ़र जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस राय से इत्तेफाक किया और काफिला आगे चल दिया, यहाँ तक कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला में नजुल फरमाया। यह मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मुकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह करबला कहते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला से वाकिफ़ थे और आपको मालूम था कि करबला की यह जगह जहाँ अहल बैत रिसालत को राह हक में अपने खून की नदियाँ बहानी होगी। इन्हीं दिनों आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपने सीना मुबारक पर दस्ते अक़दस रखकर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अज्र अता फरमा। यजीद की बैत के लिए हुसैन इब्ने अली को बुलावा। फिर इब्न जियाद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़त लिखकर भेजा कि यजीद के बैत कर लीजिए। जब वह ख़त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा, आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और ख़त लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं,
इल्वी ने आकर इब्न जियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्न जियाद का गुस्सा बढ़ा उठा। उसने लोगों को जमा किया, फौजियों को तैयार किया और उनका सिपह सलार उमर बिन साद को बनाया जो मल्क रय का वाली था। अव्वलन उसने पहले वही से काम किया। उस पर इब्न जियाद ने कहा कि या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा या फिर रय के हुकूमत को छोड़कर घर बैठ जा। इब्न साद ने रय की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और प्यादा लेकर उस नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि लोग यहाँ दरियाए फुरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला सैयद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पानी के दरमियान हाइक हो गए और पूरी तरह से पानी बंद कर दिए गए ताकि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजबूर होकर यजीद की बैत कर ले। यहाँ यह कार्रवाई हुई कि सभी खेमों को एक दूसरे के करीब कर दिया गया। खेमों के पीछे खंदक खोदी गई और उसे नरकल और सूखी लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन ने रफ़्का कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए हैं और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए हैं और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहल और साथियों से फरमाया कि सुबह दुश्मन से इसरा मुकाबला है। मैंने बेखुशी तमाम सब को इजाज़त दी। अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरी अहल बैत में से एक एक को साथ ले जाओ। अल्लाह अज़ व जल तुमको जाए खैर दे। देहात व बिलाद में मुतफर्रिक हो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला बिला टाले दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। यह सुनकर इमाम के भाइयों साहबजादों और अब्दुल्ला बिन जफर के बेटों ने अर्ज की कि ऐसा हम किस लिए करें? इसीलिए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जिंदा रहें। अल्लाह अज़ व जल हमें वो मनहूस दिन न दिखाएं कि आप न हो और हम जिंदा रहें। हजरत अली इमाम हुसैन के बच्चे बिलखुसूस ख्वातीन प्यास की बिद्दत से हलक खुश्क है। हजरत सकीना तड़प के अपने बाप से कहती है कि मुझे 6 महीने से अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है। हजरत इमाम हुसैन बच्चे को हाथों में उठाते हैं और नहरे फिरात में पहुँच के फरमाते हैं तुम्हारा मामला मेरे साथ है। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और चुल्लू भर पानी से उसे पिलाना चाहते हैं। तभी एक तीर आता है जो अली असगर के गले को चीर देता है। खून बहने लगता है और गर्दन लटक जाती है। हजरत इमाम हुसैन को वह बहता हुआ खून अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछाल कर कहते हैं मालिक हुसैन की यह कुर्बानी भी कबूल कर। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खेमों की तरफ चल देते हैं, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं है। कहते हैं मालिक हुसैन की यह कुर्बानी भी कबूल कर ले। अब इस देशों की तरफ आना शहर बानो उम्मे रवाब सैयदा जैनब हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा सामना का कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, शहजादों के यहाँ खेमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौजे कौसर से सैराब हो गया। अल्लाह अकबर, कोहराम मच जाता है। यहाँ तक कि इब्न साद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रफ़्का पर हमला कर दिया। आपके रफ़्का अहबाब बिरादराना और शहजादगान एक एक करके शहीद होते चले गए। तकरीबन 50 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए और दिल आखिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इसी तरह एक एक करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के तमाम नौजवान बहादुर जंगजू शहीद होते चले गए और कुर्बानी का प्याला पी लिया। धीरे धीरे जब हजरत इमाम हुसैन के सभी यार अपनी शहादत हासिल कर गए तो उन्होंने फैसला किया कि अब खुद मैदान में तलवार लेकर निकला जाए। वो मैदान में गए और यजीदी फ़ौज से लड़ना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अकेले यजीदी फ़ौज का मुकाबला काफ़ी देर तक किया। अकेले होने के बावजूद किसी ने भी हजरत इमाम हुसैन को मुकाबला करने का जुर्रत नहीं की और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि हजरत अली के प्यारे बेटे थे। उस वक्त यजीदी फ़ौज के फौजी हुक्मरान इब्न साद ने महसूस किया कि वह हजरत अली के बेटे किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने तमाम सिपाहियों को इमाम हुसैन की मुखालिफत में एक साथ हमला करने का हुक्म दिया।
ان کے ایک ساتھ حملے کے باوجود امام حسین نے ثابت کیا کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی بڑھ جائے، حق اور سچ کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹکتا۔